السلام علیکم ناظرین، فلمیزیا کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن گھر گھر رونق رمضان کے ساتھ آپ کی میزبان نبیہہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور جناب آج ہم آن پہنچے ہیں فتح گڑھ میں۔ آج ان لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ میسیجز کر رہے تھے، بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ فلمیزیا کی اس رمضان ٹرانسمیشن کو بہت پسند کر رہے ہیں اور آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ آج ہم فتح گڑھ کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں پر ہم جن کے گھر آئے ہیں وہ امیر صاحب ہیں، اور امیر صاحب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ خود بھی پروفیسر رہ چکے ہیں اور ان کی ساری جتنی بھی فیملی ہے یہ سارے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی، اور انہوں نے کوشش یہ کی ہے، یہ کبھی بھی جو ہے وہ باہر نہیں نکلتے ہیں، بڑا اسلامی قسم کا ان کے گھر میں ماحول ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ ہماری فیملی کا حصہ بنیں اور فلمیزیا چینل جو ہے وہ اپنی رمضان ٹرانسمیشن لے کر گھر گھر رونق رمضان اس گلی، اس محلے اور اس گھر میں آئے۔ تو آج ہم جو ہے فتح گڑھ کے علاقے میں یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کا فیڈ بیک ملتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس ٹرانسمیشن کو پسند کر رہے ہیں، اور یقین جانیے کہ ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ پروگرام کرنے کا مقصد، یہ ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے تاکہ ہم ڈیزرونگ پیپلز کے گھر تک جائیں اور ان تک ڈھیروں ڈھیر قیمتی انعامات جو ہیں وہ پہنچا کر آئیں۔ وہ لوگ جو آج تک آپ کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں، ہم ان لوگوں کو کیمرے کے سامنے لے کر آئیں اور آپ کو دکھائیں کہ ہمارے پاکستان میں جو خاندان ہیں وہ کس طرح سے رہتے ہیں اور ان کے رمضان المبارک میں خاص طور پر کیا اہتمام کیا جاتا ہے ان کے گھر میں افطاری کا، اور ان کے جو سارے لوگ ہیں وہ آپس میں کیسے مل جل کے رہتے ہیں۔ یہی سارا سلسلہ جو ہے وہ آج ہم لے کر فتح گڑھ آ گئے ہیں، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ بننا، نمبر جو ہیں وہ چل رہے ہیں اسکرال پہ، جن پہ رابطہ کر کے آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو مخیر حضرات کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسی بھی ہم جو ہے وہ گھرانوں میں جائیں گے، کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو آگے بڑھیے، ان کی مدد کیجیے اور جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ جا کر اگر انعامات بانٹ رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک کار خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کام میں بہت زیادہ ترقی دے اور آپ لوگوں کی دعا، آپ لوگوں کا پیار جو ہمارے ساتھ ہو۔ ابھی امیر انکل جو ہے وہ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کروں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انکل کیسے ہیں آپ؟ بیٹے اللہ کا احسان ہے، کرم ہے۔ انکل آپ کو کیسا لگ رہا ہے فلمیزیا چینل کے اس پلیٹ فارم سے گھر گھر رونق رمضان کی ٹرانسمیشن میں؟ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پسماندہ علاقوں میں آپ لوگ آ رہے ہیں اور ایک نظریہ، ایک سوچ کو پروموٹ کر رہے ہیں، جی بالکل، اور انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوں گے، ہمیں انشاءاللہ۔ اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں پروگرام غریبوں کے لیے، دوسروں کے لیے، جی وہ بہت پروگرامس اچھا، ہم کریں، بہت اچھا ہے۔ اچھا انکل، یہ آنٹی ہیں، آپ کی مسز ہیں، اور آنٹی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ آنٹی مجھے پتا چلا کہ آپ دل کی بھی مریض ہیں اور آپ کو شوگر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ روزے رکھ رہی ہیں اس رمضان میں، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے آپ کے اللہ لیے۔ تعالیٰ نے زندگی میں یہ دن دکھایا تو روزہ چھوڑ کے کیوں گنہگار ہوں۔ بالکل صحیح، بہت بڑی بات ہے آنٹی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے اور طاقت دے۔ اور کہتے ہیں کہ شوگر پیشنٹ جو ہیں ان کو تو روزے رکھنے نہیں چاہیے، ڈاکٹر تو یہ ریکمینڈ کرتے نہیں ہیں، نہیں، ڈاکٹر منع کرتے ہیں، لیکن میں روزے رکھتی ہوں۔ مرنا تو ایک ہی دفعہ ہے نا۔ آنٹی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت تندرستی دے، اور آپ جو ہے وہ اتنا نیک کام کر رہی ہیں۔ اور آپ یہ بتائیے، آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے؟ مجھے شکر پتا چلا الحمدللہ، میرے سب بچے تعلیم میں بہت آگے ہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کوئی ایم بی ہے، کوئی ایم بی ہے، کوئی ایم ایسی ہے۔ میری بہویں پڑھی لکھی ہیں، بیٹیاں بھی اور میرے بچے بھی۔ بالکل صحیح۔ یہ جو ہمارے ساتھ ہیں یہ آپ کی بیٹی ہے؟ جی میں سب سے چھوٹی بیٹی ہوں۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شمائلہ۔ شمائلہ۔ شمائلہ یہ آپ کی گود میں یہ میری بھتیجی ہے۔ بھتیجی ہے آپ کی؟ اچھا، آپ انمیرڈ ہیں؟ یس میں انمیرڈ ہوں۔ اچھا، پڑھتی ہیں آپ؟ نہیں، میں ٹیچنگ کر رہی ہوں۔ ٹیچنگ کر رہی ہیں، کتنی کوالیفیکیشن آپ کی؟ میں گریجویٹ ہوں۔ اچھا، گریجویشن کی ہے، تو آگے پڑھنے کا ارادہ ہے کہ بس ابھی یہیں تک؟ ابھی تو مدر کی ہیلتھ کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہے کہ مدر کا کیئر کرنی ہوتی ہے، کیونکہ سبھی ہم لوگ جاب کرتے ہیں، اچھا، تو اس کیسا وجہ لگ سے۔ رہا ہے آج فلمیزیا کی ٹرانسمیشن رمضان میں گھر گھر رونق رمضان کا حصہ بن کے کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ بہت خوشی ہو رہی ہے، اور اس بات کی بہت خوشی ہے کہ سب لوگ، آپ لوگ غریبوں کی بھی ہیلپ کرتے ہیں، اور آپ متوسط علاقوں میں جا کر ان کے ماحول کے مطابق سب کچھ دکھاتے ہیں۔ آئی ایم سو ہیپی۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو نیبرز ہیں، ان کے جو محلے والے ہیں، وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ دھوپ نکلی ہوئی ہے اس ٹائم، لاہور کا موسم جو ہے وہ دھوپ والا ہے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دھوپ ہو، گرمی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، ہم نے ہر جگہ پہنچنا ہے اور یہ ٹرانسمیشن آپ کو دینی ہی دینی ہے۔ اور اس ٹرانسمیشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ، کیونکہ انڈر گراؤنڈ بیٹھ کے اے سی میں ٹرانسمیشن کرنا بہت آسان ہے، وہاں پر نہ تو آپ کے کپڑے جو پسینے سے ڈوبتے ہیں اور نہ ہی آپ کا میک اپ خراب ہوتا ہے، لیکن کسی سڑک پر نکل کر، کسی جگہ
जगह पर जाकर, किसी मतवसत इलाके में जाकर लोगों का दुख सुनना, लोगों की तकलीफ सुनना, उनको क्या प्रॉब्लम्स है ये सुनना, ये मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए काम है जो हम कर रहे हैं। लेकिन ये काम हम अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, हम अपनी ज़ात की जो है वो सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें जो है वो इतना बना दे कि ये लोग जो हैं हमें दुआएं दें, और कल को जब हम इनके मोहल्ले, इनकी गली से गुजरें तो इन लोगों की दुआएं जो हैं वो हमारे साथ हों। बच्चे भी यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ एक और भाई भी हैं। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, सैयद ज़मीर हुसैन से जी। आप इनके बेटे हैं? जी हाँ, मैं इनका बड़ा बेटा। अच्छा माशाल्लाह। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे ये 3 बेटी, 2 बेटियाँ और 1 बेटा। अच्छा माशाल्लाह। तो आप खुद भी नात ख्वाह हैं? जी, मैं महफ़िल नात पे नकाबत करता हूँ, मुख्तलिफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में नकाबत के हवाले से, कंपेयरिंग के हवाले से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है। तो ये तो हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हम आपकी फैमिली का हिस्सा बने। आपके अब्बू से बात हुई, अम्मी से बात हुई, बहुत अच्छे लोग हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तालीम दिलवाई है। डेफिनेटली ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, बहुत ख़ास नवाजिश है। और हम लोग आज जितने भी बहन भाई जिस भी मुकाम पर हैं, हम 9 बहन भाई हैं, और इनमें से हम 6 भाइयों में से 4 भाई जो हैं इंजीनियर हैं। माशाल्लाह। एक भाई MBA, मैं टीचिंग करता हूँ, 2 बहनें हैं जो टीचिंग से वाबस्ता हैं और हाईली क्वालिफाइड हैं। और हमारी फैमिली में सिर्फ एक छोटी बहन है जो अभी ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसने आगे भी पढ़ रही है, और रिमेनिंग हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है जो मास्टर डिग्री होल्डर ना हो। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है कि हम फतेहगढ़ के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जिसे लोग ये समझते हैं कि ये बहुत ही कंजस्टेड सा एरिया है और यहाँ पर तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे ही नहीं। लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम जिस घर के बाहर खड़े हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोगों का घर है, और MA से कम इस घर में कोई भी नहीं है। तो ये बड़ी सादत की भी बात है। हमारे साथ फारूकी साहब भी होते हैं, फारूकी साहब से भी ये पूछेंगे कि ये भी गर्मी हो, तूफान हो, बारिश हो, हमारी टीम का हिस्सा है, हमारा साथ देते हैं, बहुत अच्छे नात ख्वाह हैं। अस्सलाम वालेकुम। फारूकी साहब, आपको तो अल्लाह ने जो है वो ख़ास ही जज़ा देनी है, हमारी टीम का आप हिस्सा हैं, तो आप बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है? यकीन करें कि जब से मैं आप लोगों के साथ नात के हवाले से मुंसलिक हुआ हूँ, और दिन ब दिन यानी कि काम करने का मज़ा आ रहा है, नात पढ़ने का मज़ा आ रहा है। और आप लोगों ने जो मुझको ये चांस दिया है यहाँ पर आने का, ना मीडिया में आकर नात पेश करने का, मैं आप लोगों के चैनल का बेहद मशकूर हूँ। और आज मेरे घर भाई के घर में यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल सही है। और अल्लाह ताला इसी तरह हमें जो है वो ये तौफीक दे कि हम जो है आप लोगों के घर भी आएँ। हमने ये नहीं देखा कि हम किसी बड़े महल में जाएं, हमने ये नहीं देखा कि हम किसी बड़ी कोठी में जाकर ये शो करें, हमारे बैकग्राउंड्स बहुत अच्छे हों, हम बड़े बड़े सोफ़ों पर बैठकर जो है वो इस शो कर रहे हों, और हम ये साबित कर रहे हों कि हम रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि उन लोगों के पास जाया जाए, उन लोगों की तकलीफ देखी जाए जो लोग वाकई डिज़र्व करते हैं, हमारे इनामात डिज़र्व करते हैं, और हम उनके पास जाएंगे, हम उनकी पूछेंगे। आप ना ये सोचिए कि आपका घर छोटा है या बड़ा, आप ये सोचिए कि आपका दिल कितना बड़ा है। हम आएंगे आपके पास, और साथ ही साथ जो है वो हमारे साथ यहाँ पर इनके एक और बेटे भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इनके बेटे हैं? जी, अच्छा, आपका कौन सा नंबर है इस घर में? मैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, जॉब करते शू हैं? इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप कैसा अपने घर के माहौल को फील करते हैं? माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं यहाँ पर। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अच्छा फील करना डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक है। और नाज़रीन, इसी के साथ अभी इनकी फैमिली से आपको मजीद मिलवाएंगे। अभी मुझे पता चला है कि जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, लाइट का बड़ा मसला है। जाहिर है कि क्या करें कि रमज़ान के दिन है, और रमज़ान में तो कम से कम लाइट नहीं जानी चाहिए, मगर हम ऐसे इलाकों में भी जा रहे हैं जहाँ लाइट है या नहीं है। हमारी ट्रांसमिशन आपको जो है वो ज़रूर मिलेगी। अभी जो है वो हम इस कंटिन्यू करेंगे इस ट्रांसमिशन को, लेकिन ब्रेक के बाद। और ब्रेक जो है वो अभी मैं लूँगी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी इकट्ठे हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनको इनामात भी देने हैं, ये सारे काम करने हैं। लेकिन जब लाइट आ जाएगी तो फिर हम अंदर जाएंगे और ट्रांसमिशन का जो है बाकायदा आगाज़ किरत से किया जाएगा। तो आपको जो है ब्रेक के बाद आते ही हम जो है वो किरत सुनवाएंगे, और उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनवाएंगे। और इसी के साथ मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान।
वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं दोबारा से रौनक रमज़ान में, बल्कि घर घर रौनक रमज़ान में। जी हाँ, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि आप देख रहे हैं फिल्मेजिया चैनल के थ्रू। आपको पता है कि हम हर घर, हर गली और हर मोहल्ले जाते हैं और लोगों में इनामात तकसीम करते हैं। यही रमज़ान का मकसद है कि हम इन लोगों में मोहब्बतें, चाहतें और ये इनामात तकसीम करें ताकि इन्हें याद रहे कि हम इनके घर का हिस्सा थे, हम इनके घर आए थे और इनको बहुत से ढेर सारे इनामात देकर जो है वो यहाँ से गए हैं। आते तो हम बहुत सारी चीज़ें लेकर हैं, लेकिन जाते हैं इनकी मोहब्बतें, चाहतें और दुआएं लेकर। खास तौर पे आज जैसे कि मैंने आपको ब्रेक से पहले आपने देखा कि हम अमीर अंकल के घर यहाँ पर बैठे हैं और ये इलाका जो है वो फतेहगढ़ का है और यहाँ पर इनकी फैमिली माशाल्लाह सारी ही बहुत पढ़ी लिखी है। इनके बेटे भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी बेटियाँ जो हैं वो अगर आप मल्टी स्क्रीन पर देखें तो बेटियाँ और भाभियाँ जो हैं वो किचन में तैयारी कर रही हैं, कुकिंग हो रही है और ख़ास तौर पर जो है वो अफ्तारी का सामान बनाया जा रहा है। ये होती है मोहब्बत, ये होती है चाहत और ये होती है हमारी वो सकाफत जो हम दिखाना चाह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, फिल्मेजिया के इस प्लेटफॉर्म से, कि हमारी ये रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो एक ख़ास ट्रांसमिशन है। और ट्रांसमिशंस भी चल रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रमज़ान की बातें हो रही हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अगर हम इस ट्रांसमिशन को जो है वो लोगों के घरों में जाकर कर रहे हैं और वहाँ से हम इस ट्रांसमिशन का आगाज़ जो है अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं तो हर घर में जो है वो बरकत हो जाती है, रौनक हो जाती है और यही जो है वो रमज़ान की रौनकें हैं। अभी हम जो अमीर अंकल के घर पर बैठे हैं, इनके बड़े बेटे जो हैं ज़मीर भाई, वो अभी तिलावत कलाम पाक से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में जो है वो तिलावत कलाम पाक करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से जो है वो ये इनायत फरमाते रहें कि आप अल्लाह की इसी तरीके से जो है वो तस्बीह करते रहें। इसी के साथ आपको पता है कि ट्रांसमिशन में जहां हम तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करते हैं वहीं पर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगाज़ करते हैं। तो मैं फ़ारूकी साहब से गुजारिश करूँगी कि वो हमें जो है वो नातिया शायरी सुना दें, एक अच्छी सी नात सुना दें, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम में हमेशा से मौजूद होते हैं। इसलिए मेरी उनसे गुजारिश है कि आज भी हमारे लोगों की फरमाइश पर जो है वो नात हो जाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगूं, पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगूं। खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के,
टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे रस्ते की हर मुश्किल गुजर जाती है कतरा कर, मेरे रस्ते की हर मुश्किल गुजर जाती है कतरा कर के देते हैं मुझे मुश्किल कुशा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के देते हैं मुझे मुश्किल कुशा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सदके, मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सदके मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। जिन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं, जिन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं, जिन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं कि है रुतबे में कुछ ऐसे जुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के है रुतबे में कुछ ऐसे जुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा है, शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा है, शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा। तू दरवाजे से और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। तू दरवाजे से और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। तेरा दामन अल्ताफ खाली रह नहीं सकता, तेरा दामन अल्ताफ खाली रह नहीं सकता कि देते हैं मुझे आले बा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के देते हैं मुझे आले बा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं
सदा टुकड़े मोहम्मद के। बहुत खूबसूरत। और जिस तरह से ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ है, यही ट्रांसमिशन जो है हम लेकर आपके घर भी आ सकते हैं, आप भी हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि वाकई आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि रौनक रमज़ान क्या है और पाकिस्तान की सकाफ़त क्या है और हम अपनी सकाफ़त को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनिए। हम आपको जो है वो ये बात करते हैं कि हमारे जो लाइव नंबर्स चल रहे हैं आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम बेहतरीन तौर पर जो है वो आपके साथ जो है वो ये ट्रांसमिशन कर सकें। इसी के साथ आपको पता है कि हमारे साथ जो है वो अंकल की फैमिली बैठी है, अमीर अंकल की फैमिली बैठी है। और सबसे पहले तो ज़मीर भाई जो है वो मेरे राइट साइड पे बैठे हैं, तो मैं इनसे ज़रूर बात करूंगी। ये आप माइक पकड़ लीजिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। ज़मीर भाई, ये बताइएगा कि आप जो है वो होस्टिंग भी करते हैं इस्लामिक प्रोग्राम्स में, जो है वो आप एज एन एंकर भी काम कर रहे हैं और टीवी चैनल्स पर भी आप जो है वो नज़र आते रहते हैं। ये कैसे शौक़ हुआ आपको? मैडम बस ऐसा होता है ना कि जब अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है तो सबके सब रास्ते सीधे करता चला जाता है। बिल्कुल सही। आई वाज बेसिकली ए डिबेटर, मैं स्पीचेस किया करता था एंड 4 टाइम्स कंटिन्यूअली एफसी कॉलेज में 4 साल इंटर कॉलेज चैंपियनशिप हम जो है वो जीत कर लेकर आए। अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद पॉलिटिक्स से थोड़ा सा टच हुआ। अच्छा। और वहाँ पर चल पड़ा और फिर बाई चांस एक दफ़ा हॉस्ट नहीं थे। अच्छा। हमारे मोहल्ले में एक महफिल मिलाद हो रही थी और वहाँ पर वो नहीं अवेलेबल हुए। मैं कहा यार तुम सब कुछ कर सकते हो, ये भी कर लो। वेरी सरप्राइज कि मैं कैसे कर सकता हूँ। और उसके बाद अल्लाह ताला ने शायद पसंद फरमा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। एक दफा किया और उसके बाद कंटिन्यूली ऐसा हुआ कि वही मेरी पहचान बन गया। फिर उसके बाद बाकी तमाम मामला छूट गए और सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो है वही साथ रह गया। बेशक बहुत बड़ी बात है और आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। आपने जैसे कि तिलावत भी हमें सुनाई है और साथ ही साथ ये बताइए कि नात भी पढ़ते हैं, नात पढ़ने के भी शौकीन है? मैम नात को एक्चुअली हमारे यहाँ जो ख्याल किया जाता है, सिर्फ उस चीज़ को नात समझा जाता है जो मंजूम अंदाज में तरन्नुम के साथ की जाए। बिल्कुल सही। ठीक है। हालांकि नात जो है वो शायराना अंदाज में भी है, शायरी में भी है, नसर में भी है। गोलड़ा के ताजदार पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने फरमाया ना कि शेर लिखें या किताब तनसीफ करें, लाजिम है हर हाल में एहतमाम तौसीफ करें। शरा अवराफाना लका जिक्र की ये भी है कि बस खुल के महबूब की तारीफ करें। सुभान अल्लाह। बस मैं जो करता हूँ वो तरन्नुम में करने के बजाय नसरिया सूरत में करता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ज़मीर भाई के लिए जो है वो गिफ्ट दीजिए हमें। और आज मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ बिलाल हैं, फैसल नहीं है। फैसल की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। आगे इंशाल्लाह बिलाल को आप देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा बच्चा है और गिफ्ट पकड़ाने में ये भी मेरी जो है वो बड़ी अच्छी हेल्प करेंगे। ये फिल्मेजिया चैनल की तरफ से आपके लिए एक इनाम है जो आपको याद दिलाएगा कि आप घर घर रौनक रमज़ान का हिस्सा बने और आप जो है वो खुद को जब देखेंगे और इस गिफ्ट को जब देखेंगे तो आप हमें भी दुआएं देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच टू यू, आपकी पूरी टीम का मैं इंतहाई मशकूर हूँ, फिल्मेजिया के उन तमाम दोस्तों का जो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने हम लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर दूर से बैठकर आप लोगों को देख सकते हैं और सोचा करते हैं। अच्छा, हमारा मकसद यही है कि हम आम लोगों में जाएं, आम लोगों की रूटीन दिखाएं कि आप लोग रमज़ान में किस तरह अफ्तार करते हैं, घर की क्या सिचुएशंस होती हैं, भाभियाँ बहनें किस तरह किचन में हैं, अम्मी अब्बू क्या कर रहे हैं, आप लोग भाई जो है वो कितनी जल्दी घर आ जाते हैं। असल में हमारा पूरे वर्ल्ड को दिखाने का मकसद ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, तो हमारा रमज़ान जो है वो हमें इस चीज़ का दर्स देता है कि हम अपनी इन सब चीज़ों को जो है वो साथ लेके चलें। मैं आपकी तमाम टीम का इंतहाई मशकूर हूँ अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से। और ये एक हकीकत है, टेलीविज़न स्क्रीन पर हम जो कुछ देखते हैं वो सब का सब वो नहीं है जो फैक्ट है। आम लोगों में, आम लोगों के दरमियान बिल्कुल एक नॉर्मल कॉमन लाइफ में गुजरते हुए कैसा रमज़ान गुजरता है, यही है रौनक रमज़ान और यही है अंदाज आपका। थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल ठीक है। आप जो है वो अमीर अंकल को जो है वो माइक पकड़ा दीजिए। आपसे अंकल मैं बात कर रही थी, आपने बच्चों की तरबियत माशाल्लाह बहुत अच्छी की। आपके बड़े बेटे भी जो है वो इतने खूबसूरत अंदाज में बात करते हैं कि अल्लाह ने जो है वो इनकी ज़ुबान में इतनी मिठास रखी है। माशाल्लाह सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। अंकल आपने जब अपनी आप खुद भी MA हैं माशाल्लाह? मैं तो अनपढ़। अच्छा अंकल, में ख़ास बात है कि ये खुद को बहुत
जो है वो अदना से समझते हैं, वो समझते हैं कि बस मुझ में कुछ नहीं है, जो सब कुछ है वो अल्लाह की अता है। और बेशक अल्लाह की अता है, जब अल्लाह ताला किसी को अता करते हैं तो फिर उनके घर की रौनक जो है वो नज़र आती है। आज इस फैमिली से मिलवाने का आपको जो है हमारा मकसद भी यही है अंकल, कि हम लोगों को दिखा सकें कि आप जैसी पढ़ी लिखी फैमिलीज़ जो हैं वो किस तरह से जो है वो इस्लामिक तौर पर अपने जो है आप लोगों ने किया हुआ है, सारा माहौल है आपका, आपके बच्चे भी जो हैं वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो भी जो है वो आजकल के हालांकि मॉडर्न दौर है तो अपने पोते पोतियों में वो चीज़ देखते हैं जो अपने बच्चों में आपने जो है वो दी है। आप समझते हैं कि पोते पोतियाँ भी इस तरह के, ये हकीकत है, ये उस पाक परवरदिगार का करम है। सब वालिदैन चाहते हैं, अच्छे भी बुरे भी अच्छाई मांगते हैं, जब उसका करम शामिल हो जब ही कुछ होता है, जब ही कुछ होता है। बिल्कुल सही है। किसी के चाहने अंकल आपको गार्डनिंग का भी शौक है और आप जो है वो बहुत ही नई नई किस्म की जो है वो सब्जियां भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और करवाते हैं। और मुझे तो लगता है अंकल को बैंगन का बड़ा शौक है, क्योंकि अंकल ने अपनी छत के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ स्टाइल के बैंगन जो है मुख्तलिफ कलर के, आज तक मैंने पाकिस्तान में फ़िलहाल जो है वो इस कलर के बैंगन नहीं देखे हैं। और अंकल आप खुद बताएं इनकी क्या स्टोरी है। बेटे ये स्टोरी तो वही बता सकता है जिसने ये बनाए जी, हम तो कुछ भी नहीं कर नहीं सकते। वो तो बेशक बेशक उसी का हमने करम बीज है। डाले, पानी डाला, बाकी काम तो उसका था। अंकल क्रिएटिविटी तो आपके जहन में आई ना, अल्लाह ने आपके जहन में ये सब चीज़ कुछ तो दी वही ना। करता है। बेशक सब कुछ वही करता है, बेशक। अब मेरे पास ये वाइट थे, अच्छा, ये आम बैंगन थे वो थे, उनकी क्रॉसिंग हो गई, वो हरा आ गया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। जी बिल्कुल, मैं देख के आई हूँ। बिल्कुल बल्कि मैं किसी को भी दिखाया कोई तस्लीम नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। फिर वो ऑरेंज रंग के भी आ गए, वो पहली दफ़ा अभी। सही है, तो ये तो एक नई सी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है। हमने पाकिस्तान में बैंगन देखे हैं पर्पल कलर के, डार्क पर्पल कलर के, लेकिन यहाँ मैंने बैंगन देखे हैं ग्रीन कलर के। और ग्रीन कलर के बैंगन जो है वो अंकल ने कितने खूबसूरत अंदाज में, कितने प्यार से जो वो बीज बोए और उसके बाद जो है वो ये चीज़ सामने आई। तो ये अल्लाह का वाकई ही करम है। जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, जहाँ अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जहाँ उसकी रहमतें होती हैं, उसकी बरकतें होती हैं, वहाँ नई चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं। और देखिए कि हम किस तरह से कहाँ थे और हम कहाँ से कहाँ इनके घर पहुँच गए, और आज ये आपके सामने है। ये आपको बता सकते हैं कि इन्होंने अपनी फैमिली की तरबियत कैसे की। अंकल के लिए इनाम ले आइए बिलाल, मुझे जो है वो ये दीजिए गिफ्ट टाइम पर, ताकि मैं अंकल को दे सकूँ। अंकल ये आपके लिए फिल्मेजिया चैनल की तरफ से और हमारी ट्रांसमिशन घर घर रौनक के रमज़ान की तरफ से आपने। तो खुशी हुई है, लेकिन अचानक हुआ है, बिल्कुल ताज्जुब। अंकल हम अचानक ही आ जाते हैं। अचानक से तो डर भी लगता है ना, अचानक उल्टी आ जाती है। जाहिर है कि आप लोगों ने हमसे रब्ता किया और हमें आना ही था। हमारे कुछ टाइमिंग्स भी हमें देखने होते हैं, उस हिसाब से फिर हम हर घर में जो है वो जाते हैं। बिल्कुल अंकल, आंटी से मैं बात करना चाहूँगी। आंटी का जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया कि ये हार्ट पेशेंट भी हैं और शुगर पेशेंट भी हैं, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह रोज़े रख रही हैं और अपने बच्चों की तरबियत भी इन्होंने बहुत अच्छी की है। आंटी आप क्या समझती हैं अंकल के साथ बच्चों की तरबियत करने में आप किस तरह से साथ साथ रही हैं? आप ज़्यादा डांटती हैं या अंकल ज़्यादा डांटते हैं या दोनों ही डांटते हैं? जब वो नहीं डांटा, मैंने तो हमेशा ही कहा जो गलती की आपके अब्बू को बता दूंगी। अच्छा, आपने कभी नहीं बच्चों को ना डांटा? मैंने किसी बच्चे को डांटा, ना मारा, ना बुरा भला का। बड़े प्यार से पाला आपने सब? बड़े प्यार से पाला। अगर कभी इन्होंने मारा तो बहुत रोई। ओहो, अच्छा, तो ये तो बच्चे सारे आपसे अटैच होंगे, अब्बू से डरते होंगे। नहीं ऐसा तो अंकल कह रहे कुछ नहीं। अच्छा, तो आप रोज़े रख रही हैं, आपको डॉक्टर ने इजाज़त दी है रोज़े रखने की? जी नहीं, डॉक्टर ने मना किया, लेकिन मैं अपने दिल से अपने शौक से रखती हूँ। शुगर के डॉक्टर ने मना किया, हार्ट के ने भी। सही सही, बिल्कुल सही है आंटी। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी दे और आपको, आप जो रोज़े रख रही हैं अल्लाह ताला इन्हें कबूल और मंजूर फरमाए। ज़ाहिर है इस कंडीशन में अगर आप रोज़े रख सकती हैं और वो लोग जो रोज़े करेंगे छोड़ वो देते हैं, आगे हमारी औलाद में मुंतकिल होगा, वही उन्होंने करना है। हम कोई अच्छे अमल नहीं करेंगे तो ये भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। आंटी के लिए गिफ्ट लाइए फिलहाल, मुझे जो है वो इनाम दीजिए ताकि मैं आंटी को भी दे सकूं। और अभी इनकी और फैमिली भी यहाँ पर बैठी है, उनसे भी हम बात करेंगे। आंटी ये मैं आपको खुद जो है वो खड़े होकर देना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया आपका आंटी, ये गिफ्ट आपको याद दिलाएगा कि हम आपके घर आए थे घर घर रौनक के रमज़ान की तरफ से, और ये इनाम जो है वो आप ज़रूर कबूल कर लीजिए। इसी के साथ नाज़रीन अभी मुझे बताया जा रहा है कि बड़ी फरमाइश आ रही है एक नात की और लोग ये सुनना चाहते हैं, वो इससे फैज़याब होना चाहते हैं। तो मैं फ़ारूकी साहब से गुजारिश करूँगी कि वो ये नात जो है हमें ज़रूर सुनाएं, क्योंकि फ़ारूकी साहब अपने खूबसूरत आवाज़ और अंदाज़ की वजह से जो है लोगों में मशहूर हो गए हैं और अब लोग उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो मैं गुजारिश करती हूँ कि आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमें ज़रूर सुनाइए। मैं पेश करता हूँ। और अब जो मैं नात पेश करने जा रहा हूँ, इस नात में मेरी ज़िंदगी का वो यादगार लम्हा था जब मैं इंडिया के शहर इलाहाबाद में एक इस्लामी मदरसे में गया
नात पढ़ने के लिए। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ सारे मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, ये तो मेरे इल्म में था। लेकिन मुझे बाद में बताया गया कि फारूकी साहब आपके साथ 4 बच्चे हिंदुओं की भी नात पढ़ रहे थे, और ये 2011 का वाक़या है। अल्लाह पाक ने मुझे नात पढ़ते पढ़ते वो बच्चे हिंदुओं को मुझे पता ही नहीं चला कि ये इसमें हमारे मदरसे, इस्लामी मदरसे में हिंदू बच्चे भी आते हैं यहाँ पर कुरान पढ़ने के लिए। अल्लाह पाक से हमारी ये बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि हम मुसलमानों के यहाँ पैदा हुए हैं। देखें दूसरे मज़ाहिब के लोग तरसते हैं मुसलमानों के घर में पैदा होने के लिए। मैं वो नात पेश करने जा रहा हूँ जो वहाँ के बच्चों ने मेरे साथ पढ़ी। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, अपना बनाना या रसूल अल्लाह, सीने लगाना या रसूल अल्लाह, हज कराना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। कभी तो सब्ज गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, इनको बुलाना या रसूल अल्लाह, सबको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको 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 बुलाना या रसूल अल्लाह। धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, दिले बिस्मिल का उस दर पर धड़कना हम भी देखेंगे, दिले बिस्मिल का उस दर पर धड़कना हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, इनको बुलाना या रसूल अल्लाह, सबको बुलाना या रसूल अल्लाह, अदब से हाथ बांधे उनके रोज़े पर खड़े होंगे, अदब से हाथ बांधे उनके रोज़े पर खड़े होंगे, अदब से हाथ बांधे उनके रोज़े पर खड़े होंगे, सुनहरी जालियों का यूं नजारा हम भी देखेंगे, सुनहरी जालियों का यूं नजारा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, इनको बुलाना या रसूल अल्लाह, सबको बुलाना या रसूल अल्लाह, दरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाने, दरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली, दरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली, वहाँ खैरात का बटना खुदाया हम भी देखेंगे, वहाँ खैरात का बटना खुदाया हम भी देखेंगे,
ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ان کو بلانا یا رسول اللہ گزارے رات دن اپنے اس امید پر ہم نے گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے کسی دن تو جمال روح زیبا ہم بھی دیکھیں گے کسی دن تو جمال روح زیبا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ان کو بلانا یا رسول اللہ اپنا بنانا یا رسول اللہ جلوے دکھانا یا رسول اللہ حج کرانا یا رسول اللہ عمرہ کرانا یا رسول اللہ سینے لگانا یا رسول اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت نعت، اور اس نعت کے ساتھ ہی جناب ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، لیکن بریک پہ جب ہم واپس آئیں گے تو ان کی اور بھی فیملی ہمارے ساتھ ہے، ان سے بھی بات کریں گے۔ انعامات کا جو یہ سلسلہ ہے یہ رکے گا نہیں، ابھی ہمیں بہت سارے انعامات جو ہے وہ بانٹنے ہیں، بچے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ان کے بھائی بھی اور بھابیاں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اور ملٹی اسکرین پہ آپ جو ہے وہ کچن کی تیاریاں تو دیکھ ہی رہے ہیں، کچھ ہی وقت بعد جو ہے وہ افطاری کا وقت بھی ہو جائے گا اور پھر آپ سے افطاری کی ٹیبل پہ دسترخوان پہ بھی ملاقات ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ابھی بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، بریک کے فوری بعد جو ہے وہ آپ سے ملتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گھر گھر رونق رمضان۔ آپ کے ساتھ ہے آپ کی میزبان نبیہہ خان۔ ویلکم بیک ناظرین، واپس آ چکے ہیں، آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں گھر گھر رونق رمضان میں۔ اگر آپ بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے، یہ نمبر جو آپ اسکرال پہ دیکھ سکتے ہیں اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے SMS ہمیں موصول ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس ٹرانسمیشن کو پسند کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اور اسی طرح رمضان کا سارا مہینہ انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے اور آپ کے لیے ٹرانسمیشن کرتے رہیں گے، گرمی ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، جو بھی ہو، لیکن ہم آپ کے گھر ضرور آئیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کی رونق کیا ہے، کیونکہ ہم صرف پاکستان میں ہی نہیں، پاکستان سے باہر بھی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں جو ہے وہ رمضان کی تیاریاں ہوتی ہیں اور کس طرح سارے گھر والے اکٹھے مل کے جو ہے وہ رمضان کو خاص طور پر مناتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اب تو ایونٹ بن گیا ہے، اور رمضان ایک خاص موقع ہے ہمارے پاس، ایک خاص مہینہ ہے ہمارے پاس جس میں ہم دعا کر سکتے ہیں، جس میں ہمارے پاس دعا کا خاص تحفہ ہے کہ جب افطاری ہوتی ہے تو روزہ دار کی دعا جو ہے وہ قبول و منظور فرمائی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، اور دل صاف ہو تو پھر انسان کی نیت کو دیکھا جاتا ہے، جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو آپ کی منزل آسان ہو جاتی ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ امیر انکل کے چھوٹے بیٹے بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ اچھا یہ بتائیے آپ جو ہے وہ کیا جاب کرتے ہیں؟ جیسے کہ میں ابھی اسٹارٹنگ میں آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے بتایا کہ آپ جاب کرتے ہیں، تو جاب سے کتنے بجے گھر آ جاتے ہیں؟ میں شو انڈسٹری میں جاب کرتا ہوں اچھا، اور فورن ٹریڈ دیکھتا ہوں، اچھا انٹرنیشنل مارکیٹنگ دیکھتا ہوں، اچھا ماشاءاللہ۔ اور آپ بھی ضمیر بھائی کی طرح جو ہے وہ اینکر نہیں بننا چاہتے تھے؟ نہیں جی، اس طرح بالکل اس طرح کا نہ شوق تھا۔ فخر ہوتا ہے اپنے بھائی پہ؟ ہاں جی ہاں بالکل، الحمدللہ اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری 2 بیٹی ہیں دو ماشاءاللہ۔ بیٹی ہیں، اچھا۔ یہ بھی آپ کے ساتھ؟ یہ میری بیٹی ہے، یہ آئزہ ہے، اچھا، اور ماشاءاللہ۔ ایک چھوٹی بیٹی ہے زینب ہے، وہ سے اچھا، چھوٹی بیٹی ہے۔ بالکل یہ آئزہ ہے، یہ پڑھتی ہے اسکول میں، اچھا یہ مونٹیسری میں پڑھتی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک آسان سا اسلامی سوال میں آپ سے کروں گی اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ انعام دیں گے۔ یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ کا سارا ماشاءاللہ گھر ہی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ آپ لوگوں کے پاس نالج ہے، اور آپ کے والد صاحب بھی اور آپ کے بھائی بھی جو ہے ماشاءاللہ بہت اس معاملے میں جو ہے وہ نالج رکھتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ قرآن میں کتنے سجدے ہیں؟ 14۔
14 साल के हैं, बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। बिलाल हमें इनाम दीजिए ताकि हम भाई को दे सकें, जो है वो हम बिलाल एक्टिव हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, 1-2 प्रोग्राम्स हमारे साथ करेंगे तो इनको जो है वो लाजमी ये ख्याल आएगा कि ये आपकी तरफ हमारी तरफ से आपके लिए जो है फिल्म एशिया चैनल की तरफ से घर घर रौनक रमज़ान की तरफ से आपके लिए इनाम है। और एक छोटी सी बेबी जो बैठी है ये बात नहीं करी है, लेकिन मैं इसको फिर भी जो है वो इनाम देना चाहूँगी। ये ले बेटा आपके लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, से थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। और ये छोटे भाई आपके साथ बैठे हैं, इनको जरा माइक दीजिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद रज़ा है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ रहे हैं मैं बीएससी इंजीनियर हूँ अच्छा, और माशाल्लाह। अब मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जॉब कर रहे हैं। तो आप कितने बजे घर आ जाते हैं? क्या रूटीन है रमज़ान में? रमज़ान में तो 3 बजे हमारा ऑफ हो जाता है और मैं टाइम से घर आ जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, रोज़ा सबके साथ खोलते हैं। सबसे छोटे हैं आप घर में? मैं घर में सबसे छोटा हूँ। जो बहन हमें मिली उनसे भी छोटे हैं आप? मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हैं आप, ठीक हो गया। तो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन वैसे उम्र में वैसे आप सबसे छोटे हैं, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। और आप अपनी फैमिली के लाडले भी होंगे? हाँ जी बिल्कुल, बहुत लाडला हूँ। बिल्कुल ठीक है। अम्मी के ज़्यादा लाडले, अब्बू के? अम्मी का भी तो सबसे ज़्यादा लाडला हूँ और अब्बू प्यार करते हैं लेकिन इजहार थोड़ा कम ही करते हैं। अच्छा, अब्बू का डर खौफ है मतलब? हाँ जी बिल्कुल है। बिल्कुल सही है। वो तो मेरा ख्याल है बड़े भाई से स्टार्ट हो रहा है डर खौफ। जी जी, वो भी ज्यादा डरते हैं अब्बू से, भाई भी और आप भी? बिल्कुल ऐसे। 3 भाई हैं आप माशाल्लाह? नहीं, हम 6 भाई हैं और 3 बहनें हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप 3 भाई यहाँ पे मौजूद हैं और 3 भाई? एक भाई कराची में ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में जॉब करते हैं, वो उधर हैं। अच्छा ठीक है। एक ही इज इंजीनियर एज वेल। अच्छा, और एक भाई मेरे दुबई में हैं और एक भाई इस्लामाबाद में जॉब करते हैं। अच्छा ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। तो आपसे भी हम सवाल कर लें, आप जवाब जी देंगे? जी जरूर जरूर। बिल्कुल ठीक है। अब हम आपसे इंजीनियरिंग का तो कोई क्वेश्चन करेंगे नहीं, जाहिर है कि रमज़ान का मौका है, तो हम आपसे ये पूछेंगे कि आजकल गर्मी ज़्यादा है या महंगाई ज़्यादा है? गर्मी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन हुकूमत का जो हमारा हाथ है उसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है आजकल। बहुत ज़्यादा हुई है और गर्मी महंगाई भी। की वजह से गर्मी और ज़्यादा हो गई है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, आपने जो है वो सही जवाब दिया है और आपको जो है वो हम ये इनाम दे देते हैं, ये लीजिए। थैंक यू। तो ये हमारी जो है वो टीम की तरफ से, फिल्म एशिया चैनल की तरफ से आपके लिए जो है वो ये गिफ्ट हैम्पर है। बाकी यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं, बच्चों से भी मैं बात करना चाहूँगी। बच्चे आप इधर आ जाइए और माइक आप मुझे दे दीजिए। थैंक यू सो मच जी। इधर आ जाएं आप, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। क्या नाम है आपका? ज़फ़र ज़ैदी। ज़फ़र ज़ैदी, माशाल्लाह। तो आपको कलमा आता है? जी। सुनाइए। पहला कलमा तैयब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा आप बताएं बेटा, गर्मी ज़्यादा है या महंगाई ज़्यादा है? बताइए। दोनों ज़्यादा है? गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा और महंगाई के बारे में बात होती है कि महंगाई भी ज़्यादा है? महंगाई भी ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है, क्या करें, बहुत टेंशन है। तो अभी जो है वो हम इस बच्चे को जो है वो प्राइज़ देंगे, गिफ्ट देंगे। लाइए जी बिलाल, हमें जो है वो दीजिए। और ये बेटा आपके लिए जो है वो टॉयज़ हैं, ठीक हो गया। ये आप जो है वो अपनी जगह पर चले जाए और बहना को कहें कि मेरे पास आ जाए। इट्स ओके, शाबाश। लाइए, आइए जनाब, आपका क्या नाम है? और ये प्यारी सी बच्ची जो है वो इनकी बेटी है। ये ज़हीर भाई आपकी बेटी है? अच्छा, क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4 में पढ़ती हैं। तो फातिमा आपको क्या आता है? सब कुछ आता है। अच्छा चलिए, ये बताइए नमाजें कितनी हैं? 5 नमाजें हैं। आप नमाज पढ़ती हैं? अभी नहीं पढ़ती है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप जल्दी नमाज पढ़ना शुरू करेंगी, बिल्कुल ठीक है ना? और पापा नमाज पढ़ते हैं? जी। मामा नमाज पढ़ती हैं और दादा अबू और दादी अम्मा भी नमाज पढ़ती हैं, सब पढ़ते हैं। तो फिर फातिमा भी नमाज पढ़ेगी, राइट? बिल्कुल ठीक है। तो फातिमा को इनाम मिलेगा और फातिमा जो है इस इनाम को लेकर खुश हो जाएगी। ये लें, ठीक हो गया? ओके, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि किस तरह रमज़ान की रौनकें हैं और दूसरी तरफ अगर आप मल्टी स्क्रीन पर देखें तो किचन की तैयारियां भी अपने अरूज पर हैं। बस कुछ ही वक्त बाद जो है वो यहाँ पर अफ्तारी का एहतमाम भी हो जाएगा। आपको दिखाएंगे कि इस घर की अफ्तारी जो है वो किस तरीक़ेकार से होती है। अंकल ने हमेशा से मतलब इस घर को बांध के रखा है और जब हमारी इनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटों में मेरी बहुएँ भी यहाँ पर मेरी बेटियों की तरह से जो है वो रह रही हैं और मैंने हमेशा से कोशिश की है कि हम सादगी से ज़िंदगी गुजारें। ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन इनकी सादगी देखकर हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई है। अगर आप भी इतने ही सादा लोग हैं और इसी तरह से आप लोगों के सामने आना चाहते हैं, अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, तो आप इस रमज़ान ट्रांसमिशन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं घर घर रौनक रमज़ान में। और आज हम मौजूद हैं फ़तेहगढ़ के इलाके में। ये फैमिली माशाल्लाह बहुत ही मजहबी फैमिली है। आपसे इनकी मुलाकात भी करवाई और बहुत से तहाइफ भी इन लोगों को दिए गए। और ख़ास बात यह है कि रमज़ान के ख़ास मौके पर जो है हमने इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है और अल्लाह हमारी इस काविश को जो है वो कबूल मंजूर फरमाए। अभी अफ्तारी का वक्त जो है वो करीब आने वाला है और अफ्तारी टेबल पर लग चुकी है। आप देखिए कि सारे घर वाले जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे भी आ गए हैं और जो बड़े हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कुछ देर बाद ही जो है वो अफ्तारी भी होगी और दुआ भी होगी। सबसे पहले तो जाहिर है कि हम दुआ करते हैं, उसके बाद जो है वो अफ्तार करते हैं। लेकिन अभी जो है मैं आपको यहाँ बता दूं कि अभी एक कंपटीशन बाकी है और आपको पता है कि हम जिस घर में जाते हैं वहाँ पर नन भाभी के या भाभी भाभी हों या फिर देवरानी जेठानी हो, कोई भी हो, हम उनके दरमियान में जो है वो कंपटीशन करवाते हैं खाने का। और आज भी ये कंपटीशन है। यहाँ की जो बाजी हैं उन्होंने बनाया है कीमा और जो भाभी हैं उन्होंने बनाया है चिकन कढ़ाई। तो अब बच्ची इसको टेस्ट करेगी और बताएगी कि किस तरह से जो है वो ये चिकन कढ़ाई और कीमा जो है वो बहुत अच्छा बना है और इसका टेस्ट अच्छा है। उसके बाद हम जो है वो इनको इनाम भी देंगे। तो मैं इधर आ जाती हूँ, जाहिर है कि सारे घर वाले इधर बैठे हैं तो मुझे भी इनके सेंटर में बैठना पड़ेगा और मैं यहाँ बैठ चुकी हूँ। जी नाजरीन, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो ये दोनों डिशेस मेरे इर्द गिर्द जो है वो आके रखी गई हैं। एक बच्ची हमें चाहिए, फातिमा। बिल्कुल ठीक है फातिमा, आप आगे आ जाएं। जी अच्छा फातिमा, आपको करना ये है कि मैं अभी आप मुझे एक प्लेट दीजिएगा भाभी। ये प्लेट है, इसमें आपको मैं जो है वो थोड़ी सी ये चिकन कढ़ाई जो बनाई है इसका मसाला आप टेस्ट करो और बताओ कि कैसा बना है। करो टेस्ट, करो करो बेटा टेस्ट करो। जी टेस्ट करके बताइए कि कैसी बनी है। मजे की बनी है बेटा, पूरा खा तो लो। अच्छा मज़े की बनी है। ओके, अब आप कीमा ट्राई करें क्योंकि अभी आपको पता है कि इस पे जो है वो प्राइज़ विन करेंगी और आपकी मामा भी हो सकती हैं और आपकी जो है वो पुप्पो भी हो सकती हैं ना। ठीक हो गया, चलें अब आप कीमा चेक करके बताइए कि कैसा बना है। तो अब ये टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। जी बताइए कौन सी डिश अच्छी बनी है, पहले वाली या दूसरे वाली? सच सच बताना है। पहले वाली अच्छी बनी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और पहले वाली डिश है वो अच्छी बनी है, यानी कि चिकन कढ़ाई अच्छी बनी। बच्चों को चिकन पसंद होता है ना, कीमा ज़रा कम ही पसंद करते हैं, लेकिन कीमा भी शक्ल से बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो हम अफ्तार करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि ये कैसा बना है। भाभी आप जो है वो ये कंपटीशन जीत गई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा लग रहा है। तो आप ये बताइए कि अब आपको जो है वो प्राइज़ दिया जाए और जो बाजी बैठी हैं, बाजी को तो कोई शिकायत नहीं है, इनसे भी पूछ लेते हैं। मुझे बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है, मैं भी वही चिकन ट्राई करूंगी पहले। हाँ जबरदस्त, इसमें कोई मसला नहीं मुझे है। लगता है आपके घर की यही रौनक है और यही मोहब्बत है जिसने इस घर को जोड़ के रखा हुआ है कि आप सब लोग साथ हैं। बिलाशुबा हम लोगों का सबका साथ ही सबसे बड़ी खुशी है। बिल्कुल ठीक है। आपके भी बच्चे हैं? नहीं मेरे बच्चे नहीं हैं। अच्छा आपके बच्चे नहीं हैं, चलें कोई बात नहीं। आप लेकिन ये सारे मेरे बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये बड़ी बाजी हैं इस घर की और बड़े जितने भी होते हैं वो जाहिर है कि अच्छे तरीके से जो है वो सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। अभी मैं कहूँगी कि जी इनाम लेकर आए मुजम्मिल, इनको इनाम दीजिए भाभी को। और हमारा ये बम्पर प्राइज़ जो है वो भाभी को जा रहा है और इसमें भी बड़े काम की चीज़ है, आपके काम आएगी। तो आपको हमारी याद दिलाएगी कि घर घर रौनक रमज़ान की टीम आपके घर आई थी फिल्मेज़िया चैनल की तरफ से आपके लिए, और आप ही के लिए भी गिफ्ट लाइए। जी आप ही, आपके लिए है, ये भी आपके काम की चीज़ है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और इसी के साथ जनाब अभी कुछ ही देर बाद जो है वो अफ्तारी का वक्त हो जाएगा और अफ्तार हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि घर को जोड़े रखना। हमारी कोशिश ये है कि हम आपको ये चीज़ दिखाएं कि घर को जोड़ के कैसे रखना है। और जो फैमिली जिनमें आज भी जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इस चीज़ को जो है वो समझें कि किस तरीके से आपने जो है वो एक साथ रहना है। इस ट्रांसमिशन को करने का मकसद और इस ट्रांसमिशन को दिखाने का मकसद यही है कि आप लोग देख सकें कि पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो है वो किस तरह से एक साथ जुड़ कर रहती हैं। आप भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनिए, हमें मैसेज कीजिए, हम इंशाल्लाह आपके घर भी आएंगे। लेकिन अभी मेरे साथ जो है वो इनकी सिस्टर बैठी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन की है, आगे आप स्टडीज कर रही हैं? जी मैं स्टडीज कर रही हूँ। जी मैं पढ़ा भी रही हूँ। कुकिंग कितनी अच्छी कर लेती हैं? कुकिंग कर ही लेती हूँ। कर ही लेती हूँ? अच्छा क्या क्या कर लेती? भाभी बना लेती होंगी, आपको जरूरत नहीं होती होगी, आप ही बना लेती होंगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर में सब कुछ बना लेती हूँ। ये सब कुछ बना लेती हैं, ठीक है। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं आप? जो सबको अच्छा लग जाए। मतलब
राइस बना लेती हूँ। भाई कह रही है बेवकूफ़ बनाती है बहुत अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं, खाना बहुत अच्छा बनाती। अच्छा, जो दो छोटे होते हैं ना, उनमें वाकई लड़ाई जो वो चल रही होती है, वो दोनों आपस में लगे होते हैं। ये मेरे घर का भी यही मसला है, जो दो छोटे आपस में वो एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे भाई ने भी आपको छेड़ा। ऐसे हम सारा दिन ऐसे लगे रहते हैं। अच्छी बात है, यही घर का माहौल है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगी, आप इसका जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि गवर्नमेंट को इस मौके पर रमज़ान के हवाले से कौन सी चीज़ें हैं जो सस्ती कर देनी चाहिए? गवर्नमेंट को रमज़ान के हवाले से तकरीबन तमाम चीज़ें, स्पेशली जो अनाज है, चिकन वगैरह खाने की चीज़ें हैं, ये ज़रूर जो है सस्ती करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि गरीब आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी आवाम को बहुत ज़रूरत है, स्पेशली उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा मुसाइब का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग जो बेचारे फ्रूट नहीं खा सकते हैं, गोश्त नहीं बना सकते अपने घर में, वो इस तकलीफ़ में मुब्तला है। हम उनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं। आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। अगर आप में से कोई भी शख्स आगे बढ़कर इस ट्रांसमिशन के थ्रू जो है उनकी मदद करना चाहते हैं, तो हम आपको खुद उनका नंबर देंगे, आप उनसे खुद रब्ता कीजिए। और आप अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर जो है वो आप स्क्रॉल पे से देख सकते हैं, ताकि आप इस नेकी में जो है वो हमारा हिस्सा बने। लोग तो एक सेगमेंट कर जाते हैं, हम तो पूरा प्रोग्राम ही नेकी पर कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम हर तरीके से जो है वो इस नेकी को फैलाते जाएँ और इसी तरह ये कारवां जो है वो चलता चला जाए। इनके लिए तोहफा लाइए जी, लीजिए ये आपके लिए, और आपको याद दिलाएगा कि किस तरीके से हम जो है वो आपके घर आए थे और आपके घर में कंपटीशन भी हुआ। अच्छा, ये बाजी का और भाभी का कंपटीशन कैसा लगा? अच्छा लगा। कंपटीशन तो नहीं था, ये हमारे हिसाब से रोज की रूटीन का काम है, ऐसे ही होता है। रूटीन का काम है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे ये जो है प्रोग्राम की खासियत है कि हम इसको कंपटीशन बोलते हैं कि कौन अच्छा खाना बनाता है घर में, और बच्चे जो है वो खास तौर पे आपको पता है कि वो सच बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चे तो सच बोलते हैं, इसीलिए अगर बाजी मीठा बनाती हैं तो जरूर जीतती हैं, क्योंकि मीठा वो शौक से बनाती हैं, वो खाना वो मीठा बनाती हैं शौक से। अच्छा, यानी कि शुमाइला सारे खाने बना लेती है। अच्छा, माशाल्लाह। और बाजी जो है मीठा ज़्यादा बना लेती है। मीठा ज़्यादा अच्छा बना लेती हैं। अच्छा, बाजी बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं, इसलिए मीठा भी अच्छा बना लेती हैं। और बाजी, आप मीठे में क्या अच्छा बना लेती हैं? मीठे में सबसे अच्छा जो बनाती हूँ फिरनी बनाती। फिरनी बनाती हैं, बिल्कुल ठीक है। चले जी, कभी मौका मिला तो आपके हाथ की फिरनी जरूर ट्राई करेंगे। आते तो आज आपके लिए फिरनी बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल, कोई बात नहीं। आपने ये जो इतना एहतमाम किया ये बहुत है। नाजरीन, आप लोग भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, आप लोग भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, और आप लोग भी उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो वाकई डिजर्व करते हैं। और आप लोग भी ऐसी फैमिली से मिल सकते हैं जो पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं, और साथ साथ जो है वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। यही प्यार है, यही मोहब्बत है, यही चाहत है, यही अखुवत है, यही भाईचारा है जिसको हम आपको दिखाना चाहते हैं और पूरे दुनिया में दिखाना चाहते हैं। ये ट्रांसमिशन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग देख रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब सऊदी अरब से कॉल आती है, उस पाक सरजमीन से कॉल आती है, मैसेज आता है कि आप हमारे यहाँ आएँ और यहाँ आके शो करें। काश कि हमें वहाँ आने का मौका मिल जाए। हमारे लिए दुआ कीजिए। हम आगे जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उम्रे के टिकट्स भी दें, आप लोगों को जो है वो बहुत सारी चीज़ें दें। तो अल्लाह करे कि हम अपनी इस चीज़ में जो है वो कामयाब हो जाएं। बस हमारे लिए दुआ कीजिए। अगर हम उम्रे के टिकट बांटेंगे तो वो लाजमी उन लोगों में बांटेंगे जो कि इस चीज़ के मुस्तहिक हैं। ये मेरा आपसे वादा है कि हम उम्रे के टिकट ज़रूर देंगे। और साथ ही साथ जो है वो अभी यहाँ पर जो है वो मैं अपने प्रोग्राम को, अपनी ट्रांसमिशन को जो है वो इख्तिताम की तरफ लेके जाऊँगी, क्योंकि वक्त हो रहा है अज़ान मगरिब का। लाहौर में जो है सब लोग अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा अफ्तार करें, लेकिन उससे पहले दुआ में शामिल होंगे और फिर जो है वो हम अफ्तारी करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इजाज़त चाहती है नबीहा खान। कल फिर मिलेंगे किसी और जगह, किसी और के घर, किसी और मेहमान के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।